Welcome to Let's Learn Academy. We are studying trigonometry and this is part 2. In the previous video, we studied what trigonometry actually means. Yes, it is the study about the sides and angles and the measurements of a triangle. Let's learn something more. A Cartesian plane or a simple graph which has x-axis and y-axis is divided into 4 parts. The first part is quadrant 1, second part is quadrant 2, third part is quadrant 3, while fourth part is quadrant 4. The positive x-axis contains angles like 0 degree, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on. So all the even pi degrees or the angle measurements which has even values of pi is on positive x-axis. While on negative x-axis we have odd pi values, that is pi, 3 pi, 5 pi, etc. To the positive y direction, the angles are like pi by 2. Now the next pi by 2 angle, which is 3 pi by 2, is on the negative y-axis. 5 pi by 2 will be on the positive y-axis, while 7 pi by 2 will be on the negative y-axis. You can see the points numbered here, and this diagram is usually called a unit circle. इसे unit circle इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो circle बना है उसका radius 1 unit माना गया है. You can also see the points where this unit circle intersects all the different axes. Here the first value inside the bracket is for cos theta, while the second value inside the bracket is for sin theta. So cos 0 degree is 1. Obviously you know this value by the table, लेकिन हम ये ग्राफ से भी ये वैल्यू बता सकते हैं. आप देख सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1,0 पॉइंट है और पहला जो पॉइंट होता है वो कॉस का होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो साइन का होता है. यह बेसिकली जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस थीटा की वैल्यू होती है और वाई कोऑर्डिनेट जो हो वो साइन थीटा की वैल्यू होती है. सो कॉस 0 डिग्री इज 1, साइन 0 डिग्री इज 0. cos pi by 2 which is on the positive y axis, वहाँ पॉइंट 0,1 है, यानी कि cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1. On the negative x axis you can find the points -1, 0. और यहाँ पे जो एंगल्स है वो मैंने बताया था odd pi, यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ऐसे एंगल्स होते हैं. सो cos pi की वैल्यू -1 है और sin pi की वैल्यू 0 है. To the negative y-axis direction, you have pi by 2 angles, लेकिन 3 pi by 2, 7 pi by 2 इस तरीके के वैल्यूज होते हैं. सो cos 3 pi by 2 is 0 and sin 3 pi by 2 is -1. क्योंकि आप देख सकते हो जो 270 डिग्री वाला एंगल वहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, that coordinates are 0, -1. And again आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन अगर आप 2 पाई एंगल पे पहुंचे यानी 360 डिग्री एंगल पे पहुंचे तो अगेन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज 1, 0. सो cos 2 pi is 1 while sin 2 pi is 0. अगेन आई रिपीट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला जो डायरेक्शन होता है वहाँ पे सारे इवन पाई एंगल्स होते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई इस तरीके से. और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला जो डायरेक्शन है वहाँ पे ऑड पाई वाले सारे वैल्यूज होते हैं, यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन. पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे पाई बाई 2 फॉर्म के वैल्यूज होते हैं एंगल के, बट वो ऑल्टरनेटिवली होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 2 जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, जबकि 3 पाई बाई 2 नेगेटिव वाई एक्सिस पे. Again 5 pi by 2 will be on positive y-axis and 7 pi by 2 will be on negative y-axis, and this way the series continues. और बाकी के जो भी एंगल्स होते हैं वो इन्हीं सभी एंगल्स के बीच में कहीं ना कहीं लोकेटेड होते हैं. अगर आप इस यूनिट सर्कल पे या कहीं पे भी प्लेन में एक पॉइंट कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल पी ए बी, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर उस पॉइंट से हम एक एंगल मेजर करना स्टार्ट करें जो उस पॉइंट से शुरू होके वापस गोल घूम के वहीं आ जाता है, यानी एक सर्कल कंप्लीट करके वहीं आ जाता है, देन द एंगल विल नॉट चेंज, द एंगल वुड बी सेम, क्योंकि हम जो ये एंगल मेजर करते हैं वो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं. सो नाउ इफ वी टेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट पी, वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट पी.
Thus, we also observe that if x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, integral multiple मतलब 2n pi फॉर्म में, 2 pi 4 pi 6 pi इस फॉर्म में अगर रोटेशन या रिवोल्यूशन हो रहा है, then the values of sine and cosine functions do not change. Thus, you can say sine 2n pi plus x is equals to sine x, where n is any integer, and similarly cos 2n pi plus x is equals to cos x, where n is again any integer. सिंपली अगर आप एक पॉइंट से शुरू करके रिवॉल्व होके वापस वही पॉइंट तक आ जाए, देन द वैल्यू ऑफ दैट at that point of sine or cosine does not change. So it is an important formula which you need to remember. Sine 2n pi plus x is equals to sine x, and similarly cos 2n pi plus x is equals to cos x. यहाँ से हम एक और चीज़ बता सकते हैं, वो ये है कि साइन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी साइन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो हो तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि आपने यूनिट सर्कल पे देखा होगा कि जब भी x की वैल्यू कोई भी पाई के मल्टीपल में होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो वो जो वैल्यूज़ होती है वो x एक्सिस पे आती है, और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है. सो क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो होता है वही साइन की वैल्यू होती है और x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए x की वैल्यू जब भी n पाई हो तब साइन x की वैल्यू 0 होगी, और ऑपोजिट साइन x की वैल्यू जब भी 0 हो तब x की वैल्यू n पाई होगी. सिमिलरली cos x की वैल्यू तब 0 होती है जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 यानी ऑड नंबर फिर पाई बाई 2 के फॉर्म में होती है. ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आपने यूनिट सर्कल में देखा होगा कि पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस पे या सिंपली y एक्सिस पे जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और y का कुछ कोऑर्डिनेट होता है, एंड हमने देखा था कि जो x का कोऑर्डिनेट होता है वही cos x की वैल्यू होती है, यानी cos x की वैल्यू कभी भी 0 हो तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, और इसीलिए x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू इधर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 इस फॉर्मेट में कुछ होगी. दिस इज ऑल्सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. इन स्टैंडर्ड 10 यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ पढ़ी थी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट वगैरह की, जिसमें एंगल वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्रीज तक. अब इस टेबल को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि अब हमें यूनिट सर्कल से भी कुछ वैल्यूज़ मिली है. नाउ हियर 0 डिग्री रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री इटसेल्फ. पाई बाई 6 का मतलब होता है 180 डिवाइड बाई 6 दैट इज 30 डिग्री. पाई बाई 4 का मतलब होता है 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज 45 डिग्री. पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री. पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री. नाउ द एडिशनल 3 कॉलम्स आर पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. इन सभी की वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली यूनिट सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स यूनिट सर्कल में जो पॉइंट्स देखे थे चारों एक्सिस पे वहाँ से मिल जाएगी. साइन और कॉस की वैल्यूज़ आप वहाँ से लिख सकते हैं, जबकि टैन की वैल्यूज़ आप साइन डिवाइड बाय कॉस करके फाइंड कर सकते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक वगैरह की जो वैल्यूज़ होती है वो हर जगह सेम नहीं रहती है. क्वाड्रेंट में डिपेंड करता है उनकी साइन क्या होती है, यानी कि वेदर द वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव. In the first quadrant, all the trigonometric functions are positive. In the second quadrant, the values of sine and cosec is positive. Sine की वैल्यू पॉजिटिव होती है और क्योंकि cosec sine का रेसिप्रोकल ही है इसलिए cosec भी पॉजिटिव होता है. In the third quadrant, the values of tan and cot is positive, क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है और cot उसका रेसिप्रोकल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं. In the fourth quadrant, the value of cos and sec are both positive. Cos is positive, so sec is obviously positive again. So these are the different values or different signs of trigonometric function. First quadrant all positive, second quadrant sine positive, third quadrant tan positive, and fourth quadrant cos positive. और साइन कॉस टैन के जो रेसिप्रोकल है वो वहीं सारी जगहों पे पॉजिटिव रहेंगे जहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी.
अगर आप टैबुलर फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, बट आई थिंक इट इज़ easy and better to understand by the previous diagram you saw. Domain and range of trigonometric functions. अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा हो तो आपने देखा होगा डोमेन वो वैल्यू होती है जिसे आप किसी भी फंक्शन में डालते हो, और रेंज वो सारी वैल्यूज़ होती है जो आपको किसी फंक्शन के आंसर के तरह मिलते हो. So simply domain is the input of any function and range is the output of any function. Period means किसी भी trigonometric function की वैल्यू कितने एंगल के बाद रिपीट होती है. साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है. सो ऑब्वियसली सेक थीटा और कॉस सेक थीटा की वैल्यू भी 360 के बाद डिग्रीज के बाद रिपीट होगी. बट टैन थीटा और कॉट थीटा के केस में जो वैल्यूज होती है वो 180 डिग्रीज के बाद रिपीट होती है. सो द पीरियड ऑफ टैन थीटा एंड कॉट थीटा इज पाई. नाउ फॉर डोमेन साइन और कॉस के लिए आप कोई भी रियल नंबर्स पुट कर सकते हो थीटा के जगह, and always the answer will be some number between -1 to 1. Here in the range -1 to 1 is in closed interval. Closed interval मतलब वो जो गिवन वैल्यूज है वो तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, लेकिन उनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर उनके बीच में अगर लाई करता हो तो वो सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है. टैन थीटा के केस में आप डोमेन में सारे रियल नंबर्स नहीं ले सकते, आप सिर्फ कुछ ही रियल नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा का एक फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है उसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए जब आप टैन थीटा कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि अगर टैन थीटा कैलकुलेट करते टाइम कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो देन यू गेट द वैल्यू ऑफ टैन थीटा एज नॉट डिफाइंड, और उस केस में आप कोई रेंज या कुछ भी नहीं बता पाओगे. सो द डोमेन ऑफ टैन थीटा एंड सिमिलरली for sec theta the domain will be all real numbers minus 2n plus 1 pi by 2 यानी कि odd pi by 2 form के numbers. And similar are the ranges for the other functions as well. The most important which you need to remember the domain and range is of sin theta, cos theta and tan theta. Now let us see the graphs of different trigonometric functions. Sin theta या sin x की ग्राफ जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. यू कैन ऑल्सो मेक दिस ग्राफ बाय योर सेल्फ बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, और साइन एक्स की जो भी आपको वैल्यू मिले उसको आप वाई कोऑर्डिनेट कंसिडर करके आप ये ग्राफ खुद भी ट्राई कर सकते हैं. एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी द ग्राफ इज लाइंग बिटवीन द पॉइंट्स -1 and 1 ऑन वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट कोई भी नंबर तक जा सकता है, बिकॉज एक्स इज इनपुट हियर एंड वाई इज द आउटपुट हियर. तो डोमेन में आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, और रेंज में आपको जो भी वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच की ही कोई वैल्यू होगी. द ग्राफ फॉर cos थीटा और cos x is similar to sin x, but the difference is clearly visible. आप देख सकते हैं the graph is a bit shifted towards either the left or toward the right, but the graph is almost the same as that of sin x. The graph of tan x is somewhat like this and cosec x is somewhat like this. For sec x it is something like this and cot x is something similar to tan x but in the opposite direction. Let us solve some examples given in your NCERT textbook. Cos x is equals to -3 by 5. X lies in the third quadrant. Find the values of other 5 trigonometric functions. In class 10 you must have solved similar kind of questions, but वहाँ सिर्फ cos या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी जाती थी, कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया जाता था. और जब किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक की मेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी जाए तो आप उसकी मदद से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हो. अब टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में जो मेथड दिया है यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, बट आई वुड रिकमेंड यू टू सॉल्व इट द अदर वे. जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप अगर पाइथागोरस थियरम यूज़ कर रहे हो देन यू गेट द वैल्यू फॉर ऑल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड एवरीथिंग. cos x की जो वैल्यू होती है दैट इज
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे केस में cos x 3/5 है, तो बेस वुड बी 3 एंड हाइपोटेन्यूज वुड बी 5. सो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑल्टीट्यूड या तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको 4 मिलेगी. And then using that form of formulas for finding the other 5 trigonometric functions, you can directly find the values without using any such given formula like it is given in your textbook. You can also go for this method either. अब बात रही साइन की, तो आपने क्वाड्रेंट्स पढ़ लिए, तो क्वाड्रेंट्स में आपने पढ़ लिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है यहाँ पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज cos is negative because थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होती है. सो tan पॉजिटिव होगा और cot भी इसीलिए, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है इसलिए पॉजिटिव होगा. बाकी सारी वैल्यूज पे आप नेगेटिव साइन डायरेक्टली डाल सकते हैं. Again we have a similar question, that is cot x is equals to -5/12 and it is said that it is lying in the second quadrant. तो cot x जो होता है वो tan x का रेसिप्रोकल होता है एंड tan x इज परपेंडिकुलर बाय बेस. सो cot x इज बेस बाय परपेंडिकुलर. तो जो राइट एंगल जो ट्राइंगल है, अगर आप नीचे वाला छोटा सा डायग्राम रेफर करें तो उसके अकॉर्डिंग cot x इज इक्वल्स टू 5/12 है, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 5 है. उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं z जो कि हाइपोटेन्यूज है बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल गेट इट इक्वल्स टू 30. अब क्योंकि आपके पास ये ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स हैं, आप डायरेक्टली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहले वैल्यूज निकाल सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स यू कैन डायरेक्टली write down the signs also. Also, this is an alternative method to what I said, which is given in your textbook. You may also go through it pausing the video. Moving to example number 8, it is said that find the value of sine 31 pi by 3. Now we know that the value of sin x repeats after an interval of 2 pi, यानी हर 2 pi add करने पे वो sin x की value repeat होती है. So sin 31 pi by 3 can be written as sin 10 pi plus pi by 3. 10 pi is a even pi itself. So sin 10 pi plus pi by 3 का मतलब sin pi by 3 ही होगा, क्योंकि हमने देखा था फॉर्मूला sin 2n pi plus pi by plus pi और plus theta will be sin theta itself. Another thing, अगर आप कंफ्यूज है कि ये 10 pi कहाँ से लाना है या 31 pi by 3 को आप स्प्लिट करके 10 pi plus pi by 3 कैसे लिख सकते हैं, तो आप ये 31 को डिवाइड कर दीजिए 3 से. whatever quotient you are getting, that will be your multiple of pi. So when you divide 31 by 3, you will get 10 as quotient. So you can write 10 pi and plus pi by 3 directly. So you will get 31 pi by 3 splitted as 10 pi plus pi by 3. Now which is equal to sin pi by 3 and sin 60 degree. Sin pi by 3 means sin 60 degree, and which is equals to root 3 by 2. Example 9. Find the value of cos minus 1710 degrees. Now an important thing, कभी भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव मिल रही हो, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि वो पॉजिटिव बन जाए बाय एडिंग समथिंग इनटू इट. अभी cos माइनस 1710 जो है उसको आप लिख सकते हो cos minus 1710 plus 5 into 360 degree. Now 360 degree means 2 pi. So basically you are adding 10 pi to minus 1710, which is equals to minus 1710 plus 1800 degree, और जिसको सॉल्व करने पे आपको 90 डिग्री मिल जाएगी. या आपको सिंपली जो 2 पाई है उसका कोई भी मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई सो ऑन आपको इस थीटा की वैल्यू में डालना है, जिससे ये थीटा जो है या टोटल कॉस के अंदर जो भी थीटा एंगल की वैल्यू दी है वो पॉजिटिव बन जाए. सो हियर अगर आप 2 पाई या 4 पाई डालो 6 पाई डालो तो आपको वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिल रही. सो डायरेक्टली 10 पाई डालना पड़ रहा है जिससे आपको एंगल की वैल्यू पॉजिटिव मिले, और पॉजिटिव मिलने के बाद जो भी एंगल आ रहा है आपका, so minus 1710 plus 1800 is equals to cos 90 degree, and you know cos 90 degree is 0.
So you may find a bit difficult at the beginning to do these trigonometric questions, but as practice makes man perfect, you need to keep on practicing different kinds of sums of the same type or of the same formula, and obviously by the end you'll be able to master trigonometry as well. So keep practicing. Thank you. See you in the next video.